صحافی عامر علی خان اور تلنگانہ جنا سمیتی صدر پروفیسر کودنڈارام نے جمعہ کو تلنگانہ قانون ساز کونسل کے اراکین کی حیثیت سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے گورنر کوٹا کے تحت عامر علی خان اور پروفیسر کودنڈارام کے بحیثیت رکن قانون ساز کونسل حلف لینے کی راہ ہموار ہونے کے 2 دن بعد دونوں نے قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی کے چیمبر میں حلف لیا۔ جی سکھیندر ریڈی نے دونوں اراکین کو حلف دلایا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء پونم پربھاکر، پی سرینواس ریڈی، رکن کونسل مہیش گوڑ و دیگر موجود تھے۔ فاکس کون کے چیئرمین یانگ لیو کی قیادت میں ایک وفد نے دہلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ہندوستان کا دورہ کر رہے فاکس کون کے چیئرمین یانگ لیو نے قومی دارالحکومت دہلی میں جمعہ کی صبح چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے شہر حیدرآباد کی تاریخ، صنعتی اداروں کی توسیع و دیگر تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف منسٹر نے فاکس کون کے وفد کو بتایا کہ حیدرآباد کا سنگ بنیاد 430 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود صنعتی ترقی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ فورتھ سٹی میں تعلیم، طب، کھیل، الیکٹرانکس، الیکٹریکل اور اسکل ڈیولپمنٹ کو کثیر جہتی انداز میں تیار کیا جائے گا۔ فاکس کون کے چیئرمین یانگ لیو نے اس موقع پر کہا ہے کہ حیدرآباد شہر میں صنعت اور خدمات کے شعبوں سمیت تمام شعبوں میں توسیع کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ جلد ہی اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرآباد شہر کا دورہ کریں گے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے آر ٹی سی بسوں میں سفر کرنے والی خواتین سے متعلق کیے گئے تبصرے پر معذرت خواہی کی ہے۔ سابق وزیر و سرسلہ ایم ایل اے کے ٹی آر نے اسٹیشن گھنپور میں 15 اگست کو ایک اجلاس میں آر ٹی سی بسوں کا استعمال کرنے والی خواتین پر یہ کہہ کر تبصرہ کیا تھا کہ خواتین کے بس میں لہسن یا ادرک چھیلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواتین چاہے تو بنائی کریں یا چاہے تو بریک ڈانس کریں۔ بی آر ایس صرف مزید بسیں متعارف کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کے ٹی آر کے اس تبصرے کے بعد وزیر سیتا اکا، خواتین کمیشن کی سربراہ و دیگر شدید ناراض ہو گئے اور کے ٹی آر سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کے ٹی آر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ وہ معذرت خواہ ہیں کہ گزشتہ روز میٹنگ میں کیے گئے تبصروں سے ان کی بہنوں کو برا لگا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ اپنی بہنوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کولکتہ کی خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے واقعے کے خلاف شہر حیدرآباد میں ڈاکٹرز نے احتجاجی ریلی نکالی، قاتلوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کولکتہ کی آر جے کار میڈیکل کالج کی ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف ڈاکٹرز سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں احتجاج کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی ڈاکٹرز سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ جمعہ کو تقریباً 2500 ڈاکٹرز نے عثمانیہ میڈیکل کالج سے عثمانیہ جنرل اسپتال تک ایک احتجاجی ریلی نکالی اور خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور پھر بہیمانہ قتل کرنے والے ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کولکتہ کے آر جے کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف گاندھی اسپتال کے جونیئر ڈاکٹروں اور میڈیکل طلباء نے احتجاج درج کروایا۔ کولکتہ کے آر جے کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف شہر حیدرآباد میں احتجاج جاری ہے۔ جمعہ کو گاندھی اسپتال کے جونیئر ڈاکٹرز اور میڈیکل طلباء نے شدید احتجاج درج کروایا اور متاثرہ کے ساتھ انصاف کرنے، قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی۔ شہر حیدرآباد بھی اب خواتین کے لیے غیر محفوظ بنتا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کی شام جے بی ایس بس اسٹینڈ کے قریب ایک خاتون کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک 23 سالہ خاتون جو کہ کافی شاپ پر کام کرتی ہے، 15 اگست کی شام اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد گھر جا رہی تھی۔ وہ میٹرو کے ذریعے شام 7:30 بجے کے قریب جے بی ایس میٹرو اسٹیشن پر اتری اور پھر جے بی ایس بس اسٹینڈ کی طرف جانے لگی۔ تاہم شدید بارش کی وجہ سے جے بی ایس بس اسٹینڈ جانے والی سڑک زیر آب آ گئی تھی، جس کے بعد خاتون دوسرے راستے پر چل پڑی جہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی اور روشنی بھی نہیں تھی۔ بتایا گیا ہے کہ وہ جے بی ایس بس اسٹینڈ جانے کے لیے
सुनसान रास्ते से गुजर ही रही थी कि एक नामालूम शख्स ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। खातून ने हिम्मत से काम लेते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गया। मुतासिरा ने फौरी तौर पर मारेटपल्ली पुलिस से रुजू होते हुए इस वाक़े की इतला दी। मारेटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस शख्स की तलाश में मसरूफ हो गई है। शहर हैदराबाद में यौम आज़ादी की शाम में पेश आने वाला ये वाक़या वाज़ेह करता है कि अगरचे हिंदुस्तान ने कई शोबों में तरक्की की है, लेकिन अवामी मकामात पर ख़वातीन की हिफाजत अब भी एक संगीन मसला बना हुआ है। ऐसे इलाके जो सुनसान हैं वहाँ पर बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और पुलिस के पेट्रोलिंग और दीगर हिफाजती इक़दामात की सख्त ज़रूरत है ताकि ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और उनकी अहलिया हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर पूनम प्रभाकर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर पूनम प्रभाकर ने उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के पहले दिन नायब सदर जमहूरिया हैदराबाद में कन्हा शांतिवनम का दौरा करेंगे और दूसरे दिन अक्षरा विद्यालय कैंपस का दौरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस की आला क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार नामजद किया है। शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना से राज्यसभा में शामिल होने का मौका दिए जाने पर वो फख्र महसूस करते हैं। पेद्दा गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 माह के बच्चे समेत 4 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि शमशाबाद के पेद्दा गोलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार जो महेश्वरम के तुकुगुड़ा से शमशाबाद के रास्ते वाना पड़ती जा रही थी, बेकाबू होकर 2 दीगर कारों से टकरा गई। 2 कारों के आपस में टकराने के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 माह का बच्चा भी शामिल है। दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शमशाबाद रूरल पुलिस इस वाक़े की छानबीन में मसरूफ हो गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया। वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड़ व दीगर ने राजीव गांधी मुजस्सिमे का मुआयना किया और 20 अगस्त को होने वाली मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की तकरीब के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। आपको बता दें कि 20 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की जाएगी। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ओहदेदारों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा चॉकलेट बजरिए ऑनलाइन फरोख्त करने वाली 8 कंपनियों का पर्दाफाश किया है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में मंशियात के इस्तेमाल को फरोख्त देने के लिए मंशियात फरोश नित नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के पास और किराने की दुकानात में गांजा चॉकलेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब गांजा चॉकलेट बजरिए ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं। राजस्थान और यूपी में मौजूद कंपनियां गांजा चॉकलेट तैयार कर इंडिया मार्ट के जरिए उन चॉकलेट्स को फरोख्त कर रही है। TGNAB के डायरेक्टर संदीप शेंडालिया की टीम ने ऑपरेशन डेको किया है। उनकी टीम ने इंडिया मार्ट से गांजा चॉकलेट मंगवाए। उन चॉकलेट्स की जांच की गई। बाद तहकीकात राजस्थान और यूपी में वाक़े 8 कंपनियों की निशानदही की गई है जो कि ऑनलाइन गांजा चॉकलेट फरोख्त कर रही हैं। बादशाह TGNAB के ओहदेदारों ने इस मामले को NCB ओहदेदारों के इल्म में लाया और उत्तर प्रदेश राजस्थान में 8 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करवा दिया गया। 2 कंपनी मालिकान को भी तहवील में लिया गया है। TGNAB की जानिब से गांजा चॉकलेट्स को ऑनलाइन फरोख्त करने पर इंडिया मार्ट को भी नोटिस भेजा गया है।
जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 100% खर्च माफ किए जाने के दावों के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने गन पार्क यादगार शोहदा पर एहतजाज दर्ज करवाया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और कांग्रेसी कायदीन ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से किसानों के 100% कर्ज माफ कर दिए गए हैं। ताहम बीआरएस कायदीन इन दावों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जुमा को बीआरएस रहनुमाओं ने गन पार्क में यादगार शोहदा पर एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस के कायदीन के एहतजाज के पेश नज़र गन पार्क के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर भी हाइड्रा के एहलकारों को गैर कानूनी तामीरात पर इन्हदामी कार्रवाई करते देखा गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हाल ही में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन तश्कील दिया गया है। ओहदेदारान दिन रात गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने और तजावुज़ात को बर्खास्त करने में जुटे हुए हैं। हुकाम के लिए कोई तातिल नहीं है। हाइड्रा के एहलकारों को 15 अगस्त को भी गैर कानूनी तामीरात को मसमार करते देखा गया। शादनगर में एक स्टाफ नर्स पर हमला करने का वाक़या पेश आया। नर्सों ने साथी नर्स पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी खिदमत का बायकाट किया। ज़रा ने बताया कि नीलम भार्गवी नामी एक खातून कुत्ते के काटने पर टीका लेने के लिए अस्पताल पहुंची, ताहम अमले ने उसे नज़रअंदाज किया। अमले के नज़रअंदाज करने पर बरहम खातून ने स्टाफ नर्स आशा पर हमला कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए नर्सों ने जुमा को अपनी खिदमत का बायकाट किया। उन्होंने अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए खातून के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని బియ్యమని చెప్పాము. రేపు మార్నింగ్ వచ్చి తీసుకోండి, రేపు మార్నింగ్ వచ్చి డాక్టర్స్ ని ఆఫీసుకున్న తర్వాతనే మేము ఇస్తామని చెప్పాము. వాళ్ళ హస్బెండ్ నన్ను తీసుకురాలేదని ఆయన తిట్టుకుంటే వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ హస్బెండ్ అలా కొట్టిందంట. ఆ విషయం మాకు తెలియదు. కొట్టుకుంటారు వచ్చి నువ్వు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నన్ను ఇంకా అన్యాయం చేసి నేను కూర్చున్న తర్వాత అక్కడ కూర్చున్న మేము నువ్వు ఎవరు అసలు నా హస్బెండ్ కి నీకు ఏం రిలేషన్ ఉంది, నువ్వు ఆయనకి 5 minutes అన్నావు, నన్ను రేపు రమ్మన్నావు అని నేను 5 minutes ఎందుకు అడిగినానంటే మా కో సిస్టర్స్ ని అడిగి అసలు ఏంటి ఆ పేషెంట్ గురించి అడుగు, వ్యాక్సిన్ గురించి అడిగి కనుక్కున్నామని నేను ఆ 5 minutes అన్నాడు. దాని గురించి మా హస్బెండ్ నీకు 5 minutes అన్నావు, నన్ను రేపు రమ్మన్నావు, నీకు మా హస్బెండ్ కి ఏం లింక్ ఉందని చెప్పి మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడడానికి అటాక్ చేస్తుంది, కొట్టింది, ఇక్కడ లాగింది. 4-5 కలిసి ఆపినాను కూడా ఆగట్లేదు. వాళ్ళు లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడకపోతే ఏం తెలీదు. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के बीजेपी में इंज़माम को यकीनी करार देते हुए कहा कि केसीआर को गवर्नर का ओहदा, केटीआर को मरकजी वजीर का ओहदा दिए जाने का इम्कान है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति का भारतीय जनता पार्टी में इंज़माम यकीनी है। बीआरएस सरबराह केसीआर को गवर्नर का ओहदा, कारगुजार सदर केटीआर को मरकजी वजीर का ओहदा दिए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हरीश राव असेंबली में कायद अपोजिशन होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा है कि कविता को राज्यसभा की निशिस्त मिलेगी। एक ऐसे वक्त में जब बीआरएस के बीजेपी में जम हो जाने की खबरें गश्त कर रही है, रेवंत रेड्डी का किया गया ये सनसनीखेज तबसरा मौजू बहस बन गया है। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस बापटला जिले में बेकाबू होकर उलट गई। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस तिरुपति से हैदराबाद आ रही थी। बस में 26 मुसाफिर सवार थे। तेज रफ्तार बस बापटला जिले के अडांकी मंडल में बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े में 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को उंगुल के सरकारी अस्पताल में
भर्ती करवाया गया है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई के एक शराब की दुकान चलाने वाली खातून के घर पर हमला करने और उसे डराने धमकाने का मामला सामने आया है। जराये ने बताया कि एक खातून बंजारा नगर में शराब की दुकान चलाती है। उसका कहना है कि बोराबंडा एसआई अक्सर उसके घर आकर हंगामा करता है। इतना ही नहीं, रकम का मुतालबा करते हुए वो खातून को धमकियां भी दे रहा है। हिस्ब मामूल आज सुबह एसआई खातून के घर पहुंचा, गेट पर चीखो पुकार की और खातून को परेशान किया। एसआई की ये हरकत खातून के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। समग्र जाति संघ हैदराबाद की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई। हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर समग्र जाति संघ हैदराबाद की जानिब से आज़ादी का जश्न मनाया गया। सोसाइटी के सदर बी जनकराम की सदारत में परचम कुशाई की गई। बाद अज़ां सोसाइटी के अरकान का एक इजलास भी मुनक़िद किया गया ताकि मादिगा जाति संघ रिजर्वेशन के नफाज पर तबादला ख्याल किया जा सके। तहरीक असना हैदराबाद की तमाम कमेटियों की जानिब से एक करारदाद भी पास की गई। इस मौके पर बी जनकराम, वर्किंग प्रेसिडेंट बी कृष्णा, जनरल सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन एम महेंद्र कुमार, वाइस प्रेसिडेंट पी शंकर राव, के गणपत, एच चंद्रमोहन के अलावा बीसी धनुलाल चौधरी, एम रामराज, पी दुर्गाराज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पैदापुर दुर्गाराज, चंद्रगिरी, सीता नाराया वो दीगर मौजूद थे। जो है माला मादिगा यानी दलित जातियों का जो है रिजर्वेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्डर्स है उसके मुताबिक हम जो है आने वाले दिनों में हम यहाँ हैदराबाद में जितनी भी कमेटियाँ बनाई गई हैं उन सारे लोगों को बुलाकर मिलकर उनसे बातचीत करके हम जो है सबसे एक रेजोल्यूशन देंगे। और तेलंगाना के जितने भी अजला है, जितने भी ज़िले हैं, ताल्लुक़ है, जहाँ भी है, वहाँ तक भी हम जाकर पहुँचकर हमारे लोगों को भिजाकर वहाँ की कमेटी की भी राय लेकर हम जो है आपको राज नरसिम्हा जी को जो है दामोदर राज नरसिम्हा जी को हम जो है यानी पूरा एक मेमोरेंडम बना के पेश करेंगे। और उसके अंदर जो है चूँकि और भी 3-4 जातियाँ हैं, यानी जैसा मोची समाज है, कुलिन समाज है, यानी कक्का ढोर समाज है, और जो है दूसरे और 2 अहिरवार रविदास समाज है, ऐसे कि 5-6 समाज है। ये सारे लोगों को इकट्ठा करके हम जो है, इससे पहले बाबू जगजीवन राम हमको बहुत पहले बोले थे बात कि तुम इसको चरमकार संघ के तौर पे इस्तेमाल करो, ठीक रहेगा। अगर तुम जातियों के अंदर बदला देंगे तो हर एक जाति अपनी अपनी आवाज़ करेगा। तो इसीलिए आज जो है एक मौका है अच्छा। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मंकी पॉक्स के फैलने को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि मंकी पॉक्स से मुताल्लिक़ हंगामी कमेटी ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए उनसे कहा है कि उनकी नज़र में ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी सतह पर
باعث تشویش اور صحت عامہ کی ایمرجنسی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ WHO نے یہ اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ 12 سے زائد ملکوں میں بچوں اور بڑوں میں منکی پاکس کے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے اور وائرس کی نئی شکل پھیل رہی ہے۔ بر اعظم میں ویکسین کی خوراکیں بھی بہت کم دستیاب ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ منکی پاکس ایک نایاب متعدی بیماری ہے۔ یہ عام طور پر ایک ہلکی بیماری ہے جس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ منکی پاکس کی ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، کمر میں درد، بڑے ہوئے لمف نوڈز، سردی لگنا اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اس سے خارش بھی پیدا ہو سکتی ہے جو اکثر چہرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ افریقہ کے کئی طلباء شہر حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں، اس لیے شہریان حیدرآباد میں اس وائرل انفیکشن کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع کومرام بھیم آصف آباد کے زیر اہتمام 78ویں یوم آزادی تقریب جوش و خروش سے منائی گئی۔ مرزا سلیم بیگ صدر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع کومرام بھیم آصف آباد کی زیر قیادت، مشیر اعلیٰ محمد عابد احمد کی زیر نگرانی، آرگنائزر سیکرٹری محمد منور الدین کے ہمراہ TUWJF کے دفتر پر یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرایا گیا۔ اس موقع پر ضلع تنظیموں کے اراکین عاملہ، سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی اور پھر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ یوم آزادی پر M.A. عبدالجبار و علماء اکرام نے اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ TS ٹیکسٹ کنسلٹنٹ محمد منور الدین نے یوم آزادی تقریب میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔